Okay, so I welcome to all of you students. Now, last time we have seen the concept of increasing and decreasing functions, that is monotonicity के ऊपर मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था, and we have seen properties also of inequalities. So today we have to solve the problems. So let us quickly recollect. F dash of x is greater than equal to 0 रहेगा, तो function is called as increasing function. If f dash of x is strictly greater than 0 रहेगा, so it is called as a strictly increasing function. F dash of x less than equal to 0 रहेगा, so the function is called as a decreasing function, and f dash of x strictly less than 0 रहेगा, so it is called as a strictly decreasing function. So let us start solving the problems type 7 increasing and decreasing function के, beginning with question number 1. What is given? Test whether the following functions are increasing or decreasing. So please note down the first question. तो सबसे पहले हमें टेस्ट करना है, we have to check whether the function is increasing or decreasing function. तो चलो write down solution for question 1 का first example. So let's write down the given function. So write down given, or you can write down consider also. So क्या function दिया है students? Write down. So the function is x cube minus 6x square plus 12x minus 6, where x belongs to set of real numbers. Okay, weightage of the problem is 2 marks. देखो छोटा सा सिंपल एग्जांपल है, तो इसका वेटेज भी कम ही रहेगा. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है. तो लेट अस क्विकली फाइंड आउट f dash of x. चाहिए तो आप लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. राइट डाउन फॉर योर रेफरेंस. लेट अस गो स्टेप वाइज. इनिशियली differentiating with respect to x. चलो find out f dash of x everyone. So therefore what is f dash of x students? So f dash of x is nothing but 3x square minus 12x and plus 12. Now from this f dash of x that we have obtained, we can take 3 common from all the 3 terms. तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज. अब देखो सिंपल पार्ट है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ उसको. हाँ, तो 3 रिमेनिंग सेम, दिस कैन बी रिटर्न एज x माइनस टू द होल स्क्वायर. We have got our f dash of x as this, students. Now we have to check whether the function is increasing or decreasing. So please pay attention over here. Only increasing ऐसा statement दिया है, वो देते increasing ही है. Increasing means what? f dash of x will be greater than equal to 0 and strictly increasing. Strictly increasing में f dash of x will be strictly greater than 0. Now ये जो f dash of x मिला है, will this be strictly greater than 0 or greater than or equal to 0? Can anyone tell me क्या होगा इसमें से? Strictly increasing. Why so strictly increasing? Will this f dash of x क्या ये equal to 0 नहीं हो सकता है? हो सकता है. Why? This will be greater than or equal to 0. अगर x का वैल्यू 2 डाल दिया. सी फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है स्टूडेंट्स? फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स. तो अगर सपोज मैंने ये जो f dash of x है इसमें x का वैल्यू 2 डाल दिया, तो f dash of x will become equal to 0. So what we have got, f dash of x is greater than or equal to 0. So write down, since f dash of x is greater than or equal to 0, hence the given function
the given function is an increasing function. बस हो गया, प्रॉब्लम ओवर. Is an increasing function. That's it. Please note down. अब देखो, जब वो स्टेटमेंट देता है ना, जब वो स्टेटमेंट देगा तो उससे हमें ऐसे ही पूछेगा कि टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. वो ऐसा नहीं पूछेगा कि फाइंड वेदर दे आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वैसा क्वेश्चन, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं. वो वर्डिंग यही देगा आपको. बट इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो जब हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे वहां से हमें मालूम चल जाएगा. तो देखो, अगर x का वैल्यू 2 नहीं डालेंगे, इफ वी डू नॉट पुट x इज इक्वल टू 2, दिस एफ डैश ऑफ x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0. बट जैसे ही हम x का वैल्यू 2 डालेंगे, दिस एफ डैश ऑफ x विल बिकम इक्वल टू 2. So at that point it becomes parallel to x axis. So since f dash of x is greater than equal to 0, hence the given function is an increasing function. ये दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. ओके, प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल. बहुत ही सिंपल है एग्जांपल्स, कुछ भी नहीं है. So now students, let us move on to the second example. Now the given function is x minus 1 by x. ये फंक्शन दिया है. अच्छा, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 0. x नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड है. तो जब x 0 हो जाएगा, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, मींस इट इज फॉर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 0. मतलब वो ऐसा भी दे सकता है r माइनस 0, ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है r माइनस 0, मतलब 0 नॉट इंक्लूडेड इन द रियल नंबर. यू कैन गिव दिस रिप्रेजेंटेशन आल्सो इंस्टेड ऑफ दिस. तो चलो, हमें फाइंड करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. बट उसके लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो प्लीज राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो देयरफॉर f dash of x is equal to, at the maximum you can take LCM. तो LCM लेंगे तो ऐसा हो जाएगा x square plus 1 by x square. Excuse me. Now think properly and tell me whether this function is increasing or strictly increasing. उसमें 0 not included है. So if you observe students, f dash of x will be strictly greater than 0. Equal to 0 होगा ही नहीं, because you put any value of x. See what happens is over here, उसने क्या दिया है, x belongs to real number. तो आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालो, right from minus infinity to plus infinity, you put any real number, this will, f dash of x will never become equal to 0. और 0 हम डाल नहीं सकते क्योंकि फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है. तो ये जो f dash of x है, that we have got strictly greater than 0. So hence this function is a strictly increasing function. So write down, since, ऐसा लिखो, since f dash of x is strictly greater than 0, hence the given function is strictly, hence the given function is strictly increasing function. है ना? क्या रीजन है? रीजन हमें पता है कि जो भी x के वैल्यूज है, दे आर ऑल फ्रॉम रियल नंबर्स एंड x इज नॉट डिफाइंड एट 0.
अब जब जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है तो जीरो तो सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते हम इसमें। तो आप कोई भी रियल नंबर डालो, दिस विल बी ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, हेंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या आप ऐसा भी लिख सकते हो इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ऐसा भी लिख सकते हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एक ही बात है, प्लीज रिमेंबर दिस। ये वो वर्ड चेंज कर सकता है, ही कैन गिव अस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। वी हैव डिफाइंड मोनोटोनोसिटी is a property of function either to be increasing or to be decreasing। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। बस ये हो गया, इतना सही सॉल्यूशन है। इवन दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 2 marks। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज, अब इसमें दोनों पार्ट कवर किया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वैसे वो अलग अलग भी पूछ सकता है, ही कैन ओनली आस्क स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ही कैन ओनली आस्क स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट हम एक ही प्रॉब्लम में दोनों को कवर कर लेंगे सो दैट इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। तो अभी ये सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 2, चलो राइट डाउन, लेट्स कंसिडर द गिवन फंक्शन। इसको मैं ये लाइन को वेव ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। Now let's consider the given function, students, and let us find out f dash of x. So given, what is the given function? So the given function is 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7. So let us differentiate this with respect to x. So write down differentiating with respect to x, we get. So let's find out f dash of x, students. So therefore f dash of x क्या मिलेगा, 6x square minus 30x minus 144. So out of this, out of these three terms, we can take 6 common. So write down inside the bracket what will we obtain, x square minus 5x minus what will we get, 24। Yes, absolutely। ये हमें मिल गया f dash of x हमारा। अभी इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं आगे, तो will that be visible if I write down over here? So this is nothing but, चलो अभी नेक्स्ट ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, मुझे f dash of x है वो ऊपर ही लिख देता हूँ कंटिन्यू करके। तो therefore what do we get, students? f dash of x is nothing but 6 times of इसके जो फैक्टर्स हैं, that will be nothing but, एक तो हो जाएगा x minus 8 और दूसरा हो जाएगा x plus 3। minus 8 plus 3 is minus 24, minus 8 plus 3 is minus 5. Now let us number this as expression 1। ये जो f dash of x मिला ना, इसको आप expression 1 दे दो। Please write down till here। So I hope everyone must have done till f dash of x, students। Now there are 2 subparts, एक तो strictly increasing and second is strictly decreasing। So let us solve the a part of the problem। ठीक है, a part। Now what is saying strictly increasing? अब function strictly increasing कब होता है? When f dash of x is strictly greater than 0। So write down on the next line, आप ऐसा लिखो, f of x is, f of x is strictly increasing if f dash of x is strictly greater than 0। ठीक है, therefore
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स मोनोटोनिकली. Now what is f dash of x? So it is 6 times of x minus 8 into x plus 3 is greater than 0. Now see the properties of inequalities. अब क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मत दो, don't number this as equation 1. किया है, no problem, just rub it off. Now see the properties of inequalities. We can divide by the same positive number on both the sides of equality. Inequality does not change or remains the same. तो ये क्या हो जाएगा, x minus 8 into x plus 3 is strictly greater than 0. 6 से डिवाइड कर दिया, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. Now see what he is saying, students. We want to find out the values of x for which this function is strictly increasing. x के ऐसे वैल्यूज हमें निकालने हैं जिसके लिए ये फंक्शन हमेशा बढ़ते रहेगा. It is always strictly increasing. So now we have to use the properties of inequalities. See, product is greater than 0, है ना, तो उसमें दो केस बनते हैं. So write down case number 1. Now see in your notebook, if a into b is greater than 0, then a is greater than 0 as well as b is greater than 0. So what is case number 1, students? So case number 1 is x minus 8 is greater than 0 and x plus 3 is also greater than 0. दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. प्लीज रेफर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, वो आप नोटबुक सामने रखो. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी चीजें लिख के दी है. Now x minus 8 greater than 0 कब होगा, जब x का वैल्यू greater than 8 होगा, and x plus 3 will be greater than 0 when x is greater than minus 3. अभी हमें वो कॉमन वैल्यूज चाहिए which are greater than 8 and greater than minus 3. Now just try to understand first graphically, then I will explain you logically also. Please pay attention everyone. अब देखो ये नंबर लाइन है, आपको एकदम इजी वे में समझा देता हूँ. दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो समवेयर -3 यहाँ पे है और आप समझ के चलो कि 8 यहाँ पे है. अब हमें ऐसे वैल्यूज चाहिए जो -3 से बड़े हैं. तो -3 से बड़े हैं तो वो सारे वैल्यूज राइट हैंड साइड पे आएंगे, और हमें ऐसे भी वैल्यूज चाहिए जो 8 से भी बड़े हैं. तो व्हाट इज कॉमन टू देम, -3 से बड़े वैल्यूज और 8 से बड़े वैल्यूज. तो विच इज कॉमन सॉल्यूशन टू बोथ ऑफ देम, ग्रेटर देन 8. जो 8 से बड़े वैल्यूज है वही इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे. तो व्हाट डू वी गेट, आई विल एक्सप्लेन यू, अदर वे आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू. तो देयरफॉर x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 8. अगर कंडीशन 1 को ट्रू होना है तो x का वैल्यू हमेशा 8 से बड़ा होना चाहिए. That is x belongs to open interval 8 comma infinity. In this 8 is not included. 8 से बड़े वैल्यूज चाहिए, इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू डालो, कंडीशन नंबर 1 becomes true. Okay, let me explain once again students. We want the product to be positive. तो केस 1 हमने ले लिया कि दोनों अगर पॉजिटिव है तो फिर x should be greater than 8, मतलब 8 to infinity. अभी आप लॉजिकली सोचो, अभी सपोज अगर कोई भी वैल्यू डाल लो जो 8 से छोटा है, लेट अस टेक एनी वैल्यू व्हिच इज लेस देन 8. से इजीएस्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 7 ही डाल लो आप. नाउ व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 7 डालोगे तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, ये आंसर नेगेटिव आएगा. 7 into -8 -1, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो लेस देन 0 देखो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. तो आप 8 से छोटा वैल्यू लोगे तो इक्वेशन 1 सैटिस्फाई नहीं होगा. अगर 8 भी डालोगे तो भी नहीं होगा. इवन इफ यू पुट x इज इक्वल टू 8 ना, तो 8 - 8 0 हो जाएगा. वी डोंट वांट इक्वल टू 0, वी वांट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो x के कौन से वैल्यूज डालने हैं, 8 से बड़े वाले वैल्यूज डालने हैं टिल इंफिनिटी. तो x बिलोंग्स टू 8 कॉमा इंफिनिटी. दिस इज द सॉल्यूशन फ्रॉम केस 1. ये केस 1, अभी केस 2 बाकी है.
but just give me the clearance. Is this case 1 understood to all? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Thank you for your response. Please note down this. समझ के लिखना है, इसको हम रट्टा नहीं मार सकते. We have to understand and write. प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए. तो वैसे ऑब्जर्वेशन से भी हम ये चीजें लिख सकते हैं, बट एचएससी में बोर्ड एग्जाम में हमें स्टेप्स शो करने पड़ते हैं. एंट्रेंस एग्जाम में इसके लिए शॉर्टकट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. शॉर्टकट अभी कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, बिकॉज दीज आर थियरी लेक्चर्स. तो आप देख के भी मालूम कर सकते हो कि 7 डाला तो क्या होगा एंड ऑल दैट, तो वहां से आपको जजमेंट मिल जाएगा. एंड इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस फॉर योर रेफरेंस. दिस ड्राइंग इज नॉट कंपलसरी इन एग्जाम. ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए है. So x is greater than 8, so x belongs to 8 comma infinity. तो 8 to infinity अगर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब ये केस 1 हो गया, केस 2 भी तो बाकी है. So let us discuss now case 2 also. Now case 2 में क्या होगा स्टूडेंट्स? राइट डाउन. प्रोडक्ट इज पॉजिटिव means x minus 8 is less than 0 and x plus 3 is also less than 0. अगर किसी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों नंबर्स या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज. So therefore what do we get? X is less than 8 and x is less than -3. अब पहले नंबर लाइन पे समझ लो आपको, आपके रेफरेंस के लिए. तो ये -3 है और ये 8 है. अभी हमें ऐसे वैल्यूज चाहिए जो -3 से छोटे हैं, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी. और ऐसे भी वैल्यूज चाहिए जो 8 से भी छोटे हैं. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द कॉमन सॉल्यूशन टू बोथ ऑफ देम? इट विल बी कॉमन सॉल्यूशन क्या निकलेगा? x will be less than -3 आएगा. x will be less than -3 आएगा. that is x belongs to -infinity, -3. -3 से जो छोटे वैल्यूज है, -3 से जो छोटे वैल्यूज है वो आप यहाँ पे डालो. equation 1 will be strictly greater than 0, or you can say function is strictly increasing. 8 to infinity में भी डालो तो भी फंक्शन strictly increasing है. strictly increasing. इसमें भी strictly increasing आ रहा है. -infinity से -3 में डालो तो भी फंक्शन strictly increasing आ रहा है. strictly increasing. दोनों केसेस में strictly increasing आ रहा है. अच्छा देखो कैसे. सपोज इफ आई पुट -3 से छोटा वैल्यू -4 डाल दिया. सपोज इफ आई पुट -4, तो -4 -8 -12, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गया. -4 + 3 -1, तो -12 इंटू -1 पॉजिटिव हो गया ना वैल्यू, ग्रेटर देन 0 आ गया. 3 नहीं डाल सकते. You can't put x is equal to -3, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा. हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए. छोटा वाला वैल्यू -infinity यहाँ पे और -3 यहाँ पे लिखना है. उल्टा नहीं कर सकते. यू नो दैट सिस्टम. छोटा वाला वैल्यू पहले आता है इंटरवल में, फिर बड़ा वाला वैल्यू लिखते हैं हम. So this number line is not compulsory. This is just for you to understand. फाइनल आंसर अभी भी बाकी है हमारा. हाँ, प्लीज नोट डाउन दिस. नाउ व्हाट ऑब्जर्वेशन वी डू. ये दो केस में, केस 1 और 2 से हमें क्या समझ में आता है फाइनली, कि ये जो गिवन फंक्शन है, दिस गिवन फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 जब x का वैल्यू
8 से बड़ा है, 8 टू इंफिनिटी या -∞ टू -3 के बीच में है, at that time the function is strictly increasing or monotonically increasing. So done. Final answer, the given function is strictly increasing. अच्छा, या ऐसा लिखो, from case 1 and 2. Done. From case 1 and case 2 we observe the given function is strictly increasing if and only if, IFF short form है because I am running short of space, तो short form में लिखा. IFF means it is short form for if and only if. If and only if, इसको दो तरीके से हम आंसर को लिख सकते हैं. राइट डाउन, x belongs to -∞, -3 ओपन इंटरवल यूनियन 8, ∞, अगेन ओपन इंटरवल. ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस आल्सो. ये एक तरीका है आंसर लिखने का. दिस इज वन ऑफ द वे we can write down. From case 1 and 2 we observe the function is strictly increasing if and only if x belongs to, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. और let's check out another option also. So the function is increasing if and only if x is greater than 8 and x is less than -3. आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट मीन्स वन एंड द सेम ही चीज है. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो इफ यू वांट. राइट डाउन दिस फर्स्ट. ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों लिखा है. x belongs to -∞, -3 यूनियन 8, ∞. एंड मीन्स यूनियन होता है. मीन्स वेयर विल आई ड्रॉ. चलो ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ. चलो यहाँ पे है ना स्पेस. सी ओवर हियर, दिस इज रियल नंबर लाइन -∞ टू +∞. ठीक है, ये -3 है, -3 नॉट इंक्लूडेड, एंड ये 8 है, 8 नॉट इंक्लूडेड. वी हैव डन इट इन 11th स्टैंडर्ड कि ऐसे ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होते हैं, जिसको सर्कल हम करते हैं. तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये जो फंक्शन है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर x के वैल्यूज -∞ से -3 के बीच में है, या तो फिर मीन्स एज वेल एज एंड 8 से बड़े हैं. -3 से छोटा होना चाहिए वैल्यू x का, या 8 से बड़ा होना चाहिए. तो इट मीन्स यूनियन, और इट इज रिटर्न एज एंड. अब -3 और 8 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे आप नहीं डाल सकते. डाल के देखो, -3 और 8 के बीच में एक नंबर ले लो, इजीएस्ट नंबर 0 ले लो आप. -3 और 8 के बीच में 0 आएगा तो 0 डालो. -8 इंटू +3 -24 हो जाएगा. इज -24 ग्रेटर देन 0? ना, ऑब्वियसली नॉट. तो -3 to 8 के बीच में हम कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते. -3 और 8 भी नहीं डाल सकते बिकॉज वी वांट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. So either you write down your final answer in this manner or in that manner. Both are okay. हो सकता है टेक्स्ट बुक ने वैसा दिया होगा या ऐसा दिया होगा. आप कैसे भी लिखो, it's one and the same thing. Now just give me the clearance. Is this clear to everyone? पूरी चीज क्लियर है आपको? Yes sir. Okay. Still any doubt? Please let me know.